Hi friends, welcome to GS Classroom. This is me Priyanshu, and today in this lecture we will talk about Act 1 Scene 1 of Your Merchant of Venice written by William Shakespeare. So friends, before beginning any act or scene, you must know the scene's location and characters present. Because while framing your answers, mentioning the location and characters present helps in getting extra marks. So here we begin the explanation. Act 1, Scene 1, a street in Venice, there enters Antonio, Salarino, and Salanio. Alright, so here Antonio is the merchant of the title of the play, and Salarino and Salanio are his two friends. So Antonio says to his friends in the beginning, in sooth, I know not why I am so sad. It wearies me, you say it wearies you. So he says, in sooth means truly speaking, honestly speaking, I do not know why I feel so sad. He says that मुझे seriously नहीं पता कि मैं इतना sad क्यों feel कर रहा हूँ. And he says it worries me. That means he says that this feeling has made me depressed, that because of this feeling I have been tired. And he says, and you say that it makes you depressed too. But how I caught it, found it, or came by it, what stuff it is made of, whereof it is born, I am to learn. And he says that, from where I had this feeling from where I found it, got it, or what it consists of, and from where it has been originated, मुझे अभी भी जानना है. And then he says, and such a want with sadness makes of me that I have much ado to know myself. So he says that, but because of this want with sadness, because of this feeling, because of this depression, I have become a dull fellow. I have become an absent minded person. एंड इतना सुस्त इंसान बन चुका हूँ कि मुझे अपने आप को रिकॉग्नाइज करने में कि मैं कौन हूँ मुझे परेशानी फेस करनी पड़ रही है. सो ही सेज दैट आई हैव एडो टू नो माई सेल्फ. दैट मीन्स कि मुझे ट्रबल हो रही है. आई फेल टू नो हु आई एम. Alright, then after hearing these words of Antonio, his two friends, that is Salarino and Salanio, they both were trying to figure out the reason behind Antonio's sadness. So one of his friends says that is Salarino, he says, your mind is tossing on the ocean, there where your Argos is with portly sail, like signers and rich burghers on the flood. So what he says that आपका जो माइंड है वो अभी कहाँ है एट प्रेजेंट. आपका माइंड अभी समुद्र में है, ओशियन में है, जहाँ पे आपकी जो आर्गोसीज हैं, आर्गोसीज मीन्स आपकी जो रिच कार्गो से भरी हुई शिप्स हैं, आपकी लार्ज मर्चेंट शिप्स हैं, कमर्शियल शिप्स, वो वेव्स पे चल रही हैं. सो ही सेज, और जब आपकी जो शिप्स समुद्र में चलती हैं वेव्स पे, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ग्रेट लॉर्ड्स, जेंटलमैन या फिर कोई वेल्दी सिटीजन्स चल रहे हों. एंड देन ही सेज, और एज इट वर द पेजेंट्स ऑफ द सी. सो पेजेंट्स ऑफ द सी मीन्स ही वॉन्ट्स टू से दैट ऐसा लगता है आपकी शिप्स को देख के जैसे कि एज इफ वो कोई डेकोरेटेड कार्ड्स हैं जो मूवेबल एग्जीबिशंस कर रहे हैं. ऑल राइट, लोग इकट्ठा हुए उन्हें देखने के लिए. So he says that they do overpeer the petty traffickers. That means वो कहना चाह रहा है कि और जब वो ऐसा लगता है उन्हें देखने में कि वो क्या कर रहे हैं, वो रूल कर रहे हैं किस पे, स्मॉलर बोट्स पे. petty traffickers means small boats or small ships. So he says that ऐसा लगता है, that means कि they just look over the heads of the small boats. ठीक है. And then that courtesy to them, do them reverence as they fly by them with their woven wings. So it says that और जब आपकी जो ships हैं, large merchant ships, commercial ships, जब वो समुद्र में चलती हैं लहरों के ऊपर, तो जो आसपास की लहरें हैं वो इतनी ऊंची ऊंची उड़ती हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है एज इफ कि आपके शिप्स के विंग्स आ गए हों, विंग्स अपीयर करते हैं. वाई? बिकॉज जैसे एक बर्ड जो होती है वो क्या होता है, उसके जो विंग्स होते हैं वो उसको फ्लाई करने में, एयर में हेल्प करते हैं. इन द सेम वे आपके जो शिप्स होती हैं वो इतने फास्ट स्पीड में पास करती हैं और वो सरपास कर देती हैं ये पेटी ट्रैफिकर्स को, यानी कि स्मॉल बोट्स को. तो ऐसा लगता है जैसे कि आपके शिप्स के भी क्या आ गए हैं, विंग्स आ गए हैं. ऑल राइट, एंड उसकी वजह से जो छोटी छोटी बोट होती हैं, दे जस्ट मूव अप एंड डाउन एज इफ दे वर शोइंग रेस्पेक्ट. दे बाउ to them in respect. All right, courtesy to them means bow to them in respect. आपके ships को respect show करती हैं वो. All right, and then what happens?
his another friend, that is Salanio, he says that, believe me, sir, had I such venture forth, the better part of my affections would be with my hopes abroad. So he says that मेरा विश्वास मानिए, अगर मेरे पास भी ऐसे ही फिनेंशियल वेंचर्स होते जो कि डेंजर में होते, तो मेरा भी जो मैक्सिमम पार्ट है, ग्रेटर पार्ट है मेरे थॉट्स का, वो हमेशा कहाँ रहता, वो उन शिप्स में रहता जो अब्रॉड में है. All right. So here he says that I would, कहता है कि then I should be still plucking the grass to know where sits the wind, peering in maps for ports and piers and roads. He says that, और अभी इस टाइम मैं क्या कर रहा होता, I would pluck the grass, I would be plucking the grass to know where in which direction the wind blows. मैं देखता कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है. ऑल राइट. एंड देन ही सेज कि मैं सारे के सारे मैप्स उनको बहुत ही केयरफुली देखता, जितने भी मैप्स हैं, हार्बर्स हैं, सी चैनल्स हैं, मैं सबकी डिटेल स्टडी कर लेता. एंड देन ही सेज दैट and every object that might make me fear misfortune to my ventures out of doubt would make me sad. So he says that, और हर वो ऑब्जेक्ट जो मेरे शिप्स को या मेरे वेंचर्स को डेंजर पहुंचा सकता, मिसफॉर्च्यून पहुंचा सकता, ठीक है, मैं उन सब के बारे में सोच के क्या हो जाता, मैं सैड हो जाता. So in the same way, he wants to say that Antonio is sad just because of his merchandise. So his friend, that is Salarino, he also says, he continues to say, and he say that my wind cooling my broth would blow me to an ague when I thought what harm a wind too great at sea might do. So what he says that जब मैं अपने सूप को कूल करने के लिए जब मैं ब्लो करता हूँ, तो मैं अपनी ही ब्रेथ से इतना डर जाता हूँ, एज इफ ऑग मीन्स व्हाट, फीवर सा आ जाता है, मैं इतना ट्रेम्बल करने लगता हूँ एज इफ कि मेरे फीवर सा आ गया, इतना डर जाता हूँ. किस बात से, मैं ये सोच के, बिकॉज मैं उसकी वजह से ये इमेजिन करने लगता हूँ कि अगर इसी तरह से तेज़ हवा चलेगी, तेज़ तूफान आ जाएगा समुद्र में, तो उसकी वजह से कितना नुकसान पहुँच सकता है मेरे शिप्स को, क्योंकि मेरी शिप्स जो है वो अपना डायरेक्शन ही लूज कर देंगी. ऑल राइट. सो ही सेज दैट मैं उसको सोच करके, उस डेंजर को, उस डैमेज को या उस लॉस को सोच करके मैं क्या हो जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ, इतना ज़्यादा ट्रिम्बल करता हूँ एज इफ एक इंसान फीवर में ट्रिम्बल करता है. And then he says, I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and of flats and see my wealthy Andrew dogged in sand, wheeling her high top lower than her ribs to kiss her burial. So what he says that, और जब भी मैं उस सैंडी आर ग्लास को देखता हूँ, ऑल राइट, सैंडी आर ग्लास मीन्स व्हाट, जब जिस टाइम पे एंशियंट टाइम्स में जब वॉचेस नहीं होती थी, तब उस टाइम पे ये जो ग्लास फुल ऑफ सैंड होता था, वो क्या करता था, वो इंडिकेट करता था टाइम को. ओके, द पासिंग ऑफ टाइम. सो नाउ ही सेइंग कि जब भी मैं उस आर ग्लास में सैंड को देखता हूँ, तो एक्चुअली मैं उस सैंड को नहीं देखता, बल्कि उसकी वजह से मैं ये इमेजिन करने लगता हूँ, मेरे को वो याद आ जाता है, वो डेंजर ऑफ द हिडन सैंड बैंक्स एंड द शैलो वाटर, कि इसी तरह से अगर समुद्र में कोई हिडन सैंड बैंक्स होंगी, तो उसमें जाकर के अगर मेरी जो शिप है वो उसमें जाके धंस गई, या उसका जो इट इज़ रिटन ओवर हियर दैट उसका जो मस्ट है वो इट वुड बी डिप्ड डाउन लोअर देन हर साइड्स. ठीक है, वो लोअर देन हर साइड्स, उसको रिब्स के लिए यहाँ पे बोला गया है, उसके जो साइड्स हैं वुडन उसके जो वुडन प्लांक्स हैं उसको यहाँ पे रिब्स बोला गया है. एंड देन ही सेज, उसको उस सीन को देख के ऐसा लगेगा जैसे कि वो अपने ही बरियल को क्या कर रही है, वो किस कर रही है. ऑल राइट, एज इफ ट्राइंग टू किस द सैंड्स दैट सराउंड हर, जहाँ पे वो दफन हो रही है. Okay, and then he says, should I go to the church and see the holy edifice of stone and not bethink me straight of dangerous rocks which touching but my gentle vessel's side would scatter all her spices on the stream. So what he says, जब भी मैं चर्च जाता हूँ उस होली बिल्डिंग ऑफ स्टोन को देखने के लिए, तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे होली एडिफाइस ऑफ स्टोन मीन्स होली बिल्डिंग ऑफ स्टोन. सो वो कह रहा है एक्चुअली मैं किसके बारे में सोचने लगता हूँ, मैं उन डेंजरस रॉक्स के बारे में सोचने लगता हूँ, और मैं ये इमेजिन करने लगता हूँ कि अगर मेरा जो वेसल है, मेरी जो शिप है, वो साइड से हल्का सा भी टच हो गई उस रॉक्स में, तो उसमें क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएंगे मेरे शिप में, और फिर क्या होगा कि जितना भी कार्गो होगा, जितना भी रिच सिल्क्स होगा, वैल्यूएबल मटेरियल होगा, या जो भी उसमें चीज़ें होंगी, वो सब की सब क्या हो जाएंगे, वो सब स्कैटर्ड हो जाएंगे ओशन के ऊपर. और फिर वेव्स को देख के ऐसा लगेगा एज इफ दे हैव बीन एम्ब्रोब्ड बाय द सिल्क क्लोथ्स. ओके,
उन्होंने सिल्क के कपड़े पहन लिए हो, ऐसा लगेगा वेव्स को देख करके. एंड देन ही सेज दैट एंड इन अ वर्ड बट इवन नाउ वर्ड्स दिस एंड नाउ वर्ड्स नथिंग. एंड देन ही सेज कि और फिर ऐसा लगेगा जैसे एक ही पल में मेरे पास इतना कुछ था, एक पल में मेरे पास इतना कुछ था और अगले ही पल मेरे पास कुछ भी नहीं है, रह गया है. आई हैव लॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ. Okay, so he says that in short, it makes me think that at one moment I have so much and the next moment I have nothing. ठीक है. और ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये बताना चाह रही है कि हमारी जो लाइफ होती है, ठीक है, इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो यही है कि हमारी जो लाइफ होती है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है. अगले ही पल हमारे लाइफ में क्या होने वाला है हम में से किसी को भी नहीं आइडिया होता है. All right. So next he says that shall I have the thought to think on this and shall I lack the thought that such a thing behanced would make me sad. So वो कहता है कि तो अगर मैं ये सोच सकता हूँ कि ये सारी, अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, दैट मीन्स तूफान की वजह से मेरी जो शिप्स है वो अपना डायरेक्शन लूज कर सकती हैं, डैमेज पहुँच सकता है, ठीक है, सैंड हिडन सैंड बैंक्स में जाके धंस सकती हैं, या फिर जो डेंजरस रॉक्स हैं उनसे, उनकी वजह से क्या होगा कि उनसे टकरा करके होल्स हो सकते हैं और फिर सारा जो वैल्यूएबल मटेरियल होगा मेरे शिप्स में वो सब स्कैटर हो सकता है. तो कह रहा है अगर मैं ये इमेजिन कर सकता तब तो मैं ये भी इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो कितना ग्रीफ आ जाएगा, कितनी सैडनेस आ जाएगी मेरे लाइफ में इस डिजास्टर के ऑकरेंस से. ओके. एंड देन ही सेज दैट आई नो, कहता है कि आई नो एंटोनियो इज सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्केंटाइज. सो ही सेज दैट मैं जानता हूँ अच्छे से कि अगर एंटोनियो भी सैड है तो ये इसीलिए ही सैड जस्ट बिकॉज ही इज थिंकिंग ऑफ हिज बिजनेस, ही इज थिंकिंग ऑफ हिज रिच कार्गो, हिज शिप्स, हिज मर्चेंडाइज. ओके. So after hearing all these things from his friends, Antonio says that, believe me, no, I thank my fortune for it. My ventures are not in one bottom trusted, nor to one place, nor is my whole estate upon the fortune of this present year. So therefore, my merchandise makes me not sad. So what he says, मेरा विश्वास मानो ऐसा कुछ भी नहीं है. He says, बल्कि इसके लिए तो मैं अपने गुड फॉर्च्यून को के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बिकॉज मेरा जो बिजनेस है वो एक शिप पे डिपेंडेंट नहीं है और ना ही एक लोकेशन पे डिपेंडेंट है और ना ही वो पूरे, अगर करंट ईयर में भी अगर मेरा नुकसान हो जाए, फिनेंशियल पोजीशन जो है उसकी वो पूरा सब नुकसान हो जाए, तब भी मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो इन शॉर्ट, मेरा जो लोडेड शिप्स है या मेरी जो मर्चेंडाइज है, मेरा बिजनेस जो है वो रीज़न नहीं है मेरी सैडनेस के बिहाइंड. ओके. सो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा. क्या क्या 3 था? एक शिप पे, एक सिंगल लोकेशन पे और ना ही एक सिंगल करंट ईयर में भी अगर कोई भी नुकसान होता है तो उससे भी मेरे ऊपर जितना भी नुकसान होता है मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. देन सेलारिनो, यहाँ पे इसका थोड़ा सा हमें एंटोनियो का ओवर कॉन्फिडेंट नेचर भी पता चलता है. सो इससे लेटर ऑन ये कॉन्ट्रास्ट के लिए भी यूज़ किया जाएगा आप लोगों को, तो आप इसको ध्यान रखिएगा. देन सेलारिनो ही सेज, वाई then you are in love. So he says, okay, that means there is no other reason behind your sadness. That simply means that you must be in love. That is the reason तुम इतने खोए खोए हो, तुम इतना sad feel कर रहे हो. Then Antonio, after hearing this, he says, fi. So fi means what? He says, what the nonsense you are talking. He says that what nonsense you are talking about. Then he says, shame. So Salarino says, not in love neither? Then let us say you are sad because you are not merry. So what he says, okay, that means क्या तुम लव में भी नहीं हो? ओके, दैट मीन्स कि अब हम ये कह सकते हैं कि तुम सैड इसलिए हो बिकॉज तुम हैप्पी नहीं हो. मैरी मीन्स हैप्पी. सो ही सेज दैट it were as easy for you to laugh and leap and say you are merry because you are not sad. He says that तुम्हारे लिए तो बहुत ईजी है कि तुम क्या करो, तुम हंसो, कूदो, जंप करो, हर जगह जाओ और तुम बोलो कि तुम खुश हो. क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई रीज़न ही नहीं है सैड होने का. All right. And then he explains this thing and he continues to say that now by two-headed Janus, nature had framed strange fellows in her time. Some that will evermore peep through their eyes and laugh like parrots at a bagpiper, and other of such vinegar expect that they will not show their teeth in way of smile, though nesters swear the jest be laughable. So now what he says that
जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसने दो तरह के लोगों को बनाया है इस धरती पे। ही सेज जिस तरह से बाय मीन्स ही जस्ट टॉक अबाउट नेचर, दैट नेचर हैज क्रिएटेड टू काइंड्स ऑफ पीपल। ओके, सो बाय एल्यूडिंग टू जेनस ही सेज दैट जेनस कौन है? जेनस जेनस जो है वो एक टू हेडेड रोमन गॉड है, ठीक है, जिनका टू फेसेस है। एक दोनों फेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में देखते हैं। एक फेस जो है वो स्माइल करता है और जो दूसरा फेस है वो सैड रहता है। ओके, सो अब वो क्या कह रहा है कि जी उस तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग हमेशा एक पैरट की तरह फुलिशली स्माइल करते रहते हैं, दे स्टार्ट लाफिंग, कंटिन्यूसली लाफिंग बिना किसी रीजन के। ओके, इवन अगर वो बैक पाइपर को भी सुन लेते हैं। बैक पाइपर क्या है? बैक पाइप मीन्स, बैक पाइप होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो सैड ट्यून्स निकालता है, डियरी ट्यून्स। ओके, सो दैट मीन्स जब सैड टाइम भी होता है उस टाइम पे भी वो क्या कर रहे थे, बिना किसी रीजन के वो फुलिशली पैरट्स की तरह कंटिन्यूसली हंसते रहते हैं। ओके, अपने हाफ आइज क्लोज से। ओके, सो कह रहा है एंड एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं हंसते हैं, हमेशा सोर एक्सप्रेशन दे के रहते हैं। अगर खुद नेस्टर भी आकर के उनको बोल देना कि ये जोक जो है वो बहुत ही लाफेबल है, तब भी वो एक स्माइल तक नहीं देंगे और सोर एक्सप्रेशंस रखे रहेंगे। ओके, सो दैट मीन्स नेस्टर यहाँ पे कौन है? तो नेस्टर एक ऐसा पर्सन है, हम कह सकते हैं बहुत ही ओल्ड एंड वाइज ग्रीक जनरल था, जो ट्रोजन वॉर में जिसने फाइट किया था। और किसी भी जोक को बहुत ही ज़्यादा फनी होना होगा तभी नेस्टर उस पर हंसेगा, अदरवाइज नेस्टर कभी भी नहीं हंसता था किसी ऐसे नॉर्मल जोक्स पे। सो खुद अगर नेस्टर भी आके बोलता है उनसे कि ये जोक बहुत ही लाफेबल है, तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी एक स्माइल तक नहीं देते हैं। And then, meantime, what happens that there enters Bassanio, Lorenzo, and Gratiano. Okay, so Salanio he says to Antonio that here comes Bassanio, your most noble king's man. Gratiano and Lorenzo, fare ye well, we leave you now with better company. So what he says, now here comes Bassanio, that is your true friend, okay, your best friend, your close friend. Kingsman means close friend. So he says along with Gratiano and Lorenzo, so goodbye to you now, and now we leave you in better company than us. Okay, so that means he wants to say that कि जो Bassanio है वो तुम्हारा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो हमसे ज़्यादा अच्छी कंपनी होगी तुम्हारे लिए। दैट इज द रीजन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से परमिशन चाह रहे हैं जाने की। ओके, वी वांट टू लीव। देन सेलारिनो ही सेज टू एंटोनियो दैट आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी। ओके, ही सेज दैट मैं तो यहाँ पे तब तक रुकता जब तक कि हम तुम्हें वापस से चीयरफुल नहीं कर देते, इफ योर वर्दियर फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड मी। सो कहता है कि अगर तुम्हारे जो वर्दियर फ्रेंड्स है, यहाँ पे वर्दियर फ्रेंड्स उसको किसको बोल रहा है, तो वो बेसानियो, ग्रेशियानो एंड लोरेंसो को बोल रहा है वर्दियर फ्रेंड्स। ओके, सो ही सेज दैट अगर वो नहीं यहाँ पे आए हुए होते तो फिर मैं यहाँ पे तब तक रुकता जब तक कि मैं तुम्हें वापस से चीयर अप नहीं कर देता, हैप्पी नहीं कर देता। देन एंटोनियो सेज, he says that your worth is very dear in my regard. I take it your own business calls on you and you embrace the occasion to depart. So what he says I have a great regard for you. कहता है कि अरे तुम्हारी जो importance है वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड देन ही सेज मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे खुद के बिजनेस का कोई काम आ गया है, दैट इज़ द रीज़न तुम इस मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ से जा रहे हो। All right, and what happens? This Bassanio, Lorenzo, and Gratiano, three of them enter in the scene. And then what happens? Bassanio says to Salarino that when Salarino greets them, he says, "Good morning, my good lords." Then Bassanio says to him, "Good signor both. When shall we laugh? Say when. You grow exceeding strange. Must it be so?" So now he's saying that good morning, gentlemen. But will both of you tell us that when we shall be merry? हम कब आपस में हंसेंगे, बोलेंगे एक साथ, कब इंजॉय करेंगे एक साथ? He says that तुम इतना ज़्यादा हमारे साथ स्ट्रेंजर्स बन चुके हो, इतना रिजर्व्ड हो चुके हो, तो क्या ऐसा करना ज़रूरी है? Then what happens? Salarino says, "We will make our leisures to attend on yours." He says कि ठीक है, हम कोई अपना फ्री टाइम निकालेंगे, स्पेयर टाइम निकालेंगे आपसे बात करने के लिए। Okay, and after this what happens? Salarino and Salanio, they both depart from the scene. Okay, they both leave. And then Lorenzo says to Bassanio that
My lord Bassanio, since you have found Antonio, we too will leave you, but at dinner time I pray you have in mind where we must meet. So what he says that my lord Bassanio, अब जबकि आप अपने फ्रेंड एंटोनियो से मिल लिए हैं यहाँ पे, तो अब हम दोनों लोग यहाँ से जाने की परमिशन चाहते हैं. एंड देन ही सेज बट हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप याद रखिएगा कि हमें डिनर टाइम पे दोबारा से मिलना है. ओके, और कहाँ मिलना है ये भी आप याद रखिएगा. Then what happens? Bassanio says that I will not fail you. He says, okay, I will be there, definitely there. And then Gratiano says to Antonio that you look not well, Signor Antonio. You have too much respect upon the world. They lose it that do by it with much care. Believe me, you are marvelously changed. So now what happens? That Gratiano says to Antonio that Sir Antonio, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं हमें. Okay, he says that ऐसा लग रहा है आपको देख के जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा burdened हैं दुनियादारी की चीज़ों से, वर्ल्डली अफेयर से. एंड देन ही एक्सप्लेन्स टू एंटोनियो एंड ही सेज इंसान क्या करते हैं, लोग अपना जो करंट वेल्थ होती है उसको इंजॉय नहीं करते, बल्कि बहुत ज़्यादा ओवर एंशियस रहते हैं और ज़्यादा पैसे कमाने में और पैसे ऑब्टेन करने में, और उसकी वजह से क्या होता है वो अपने प्रेजेंट टाइम के जो लाइफ के प्लेजर्स होते हैं उनको इंजॉय नहीं करते, उस वेल्थ को इंजॉय नहीं करते और हमेशा दुखी रहते हैं. सो व्हाट ही सेज दैट मेरा विश्वास मानिए आप बहुत ही ज़्यादा आप कंप्लीटली चेंज हो चुके हो. ऑल राइट. देन एंटोनियो ही सेज टू Gratiano that I hold the world, but as the world, Gratiano, a stage where every man must play a part and mine a sad one. So what he says ग्रेशियानो, मैं इस पूरे वर्ल्ड को कंसिडर करता हूँ एक स्टेज की तरह. ओके, सिर्फ एक स्टेज की तरह कंसिडर करता हूँ जहाँ पे हर एक पर्सन का कोई ना कोई रोल होता है प्ले करने का, एंड माइन इज अ सैड वन. Okay, then after hearing these words of Antonio, Gratiano says, let me play the fool. Okay, he says, okay, if this world is only a stage and everyone has a part to play, and if yours is a sad one, then I would like to play the role of a jester. Okay, he says मैं तो एक jester का, एक joker का, एक clown का role play करना चाहूँगा. Okay, and he says that with mirth and laughter let all wrinkles come, and let my liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying groans. Okay, now what he's saying that मैं चाहता हूँ मैं मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ रहे, इतना जॉय रहे, इतना लाफ्टर रहे, till I have wrinkles as if in my old age. कह रहा है कि जैसे क्या होता है ना कि ओल्ड एज में लोगों के रिंकल्स आ जाते हैं, तो वो कह रहा है कि मैं इतना खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपनी बुढ़ापे तक, मैं अपनी ओल्ड एज तक क्या है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ. ओके, आई वॉन्ट टू इंजॉय माई लाइफ. एंड देन ही सेज कि इवन मैं अपने जो लीवर है ना उसको हीटअप रखूँगा वाइन के इंटेक से. तो क्या हो गया कि अगर मेरा जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है, मैं आउटकम के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं बाद के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं प्रेजेंट टाइम को इंजॉय करूँगा. ओके, सो ही सेज दैट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ बिलीफ व्हाट हैपेंस दैट लीवर जो होता है ना वो अगर हम वाइन से हीटअप रखेंगे, मतलब हीट करेंगे, इंटेक लेंगे उसका, तो उसकी वजह से क्या होगा कि रिच ब्लड निकलेगा. ओके, इट विल प्रोड्यूस रिच ब्लड, जिसकी वजह से एक लाइवली पर्सन या एक लाइवली पर्सनालिटी मिलती है एक इंसान को. ओके, सो वो यहाँ पे क्या, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो ग्रेशियानो है वो चाहता है कि वो अपना लीवर जो है वो वाइन के इंटेक से हीटअप रखे, देन टू द कोल्ड हार्ट विद द किलिंग ग्रोन्स. ओके, इससे पहले कि उसकी डेथ हो जाए, किलिंग ग्रोन्स मीन्स उससे पहले कि उसकी डेथ हो जाए, वो चाहता है कि वो अपने लाइफ को फुल ऑन इंजॉय करे. ओके, लीवर के इंटेक से एक लाइवली पर्सनालिटी के साथ. ओके, जब रिच ब्लड उसको मिलेगा. एंड देन व्हाट ही सेज दैट व्हाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज वार्म विद इन सिट लाइक हिज ग्रैंडसायर कट इन एल्बेस्टर. ही सेज मुझे समझ नहीं आता एक इंसान जिसके वेन्स में वार्म ब्लड फ्लो कर रहा है, ओके, गर्म खून दौड़ रहा है, वो इंसान क्यों ऐसे अपने ग्रैंडफादर के उस स्टैचू की तरह बैठा रहता है, एकदम इमोशनलेस या फिर एक्सप्रेशनलेस, जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ है. ओके, एल्बेस्टर मीन्स वाइट मार्बल से बना हुआ. देन ही सेज स्लीप व्हेन ही वेक्स एंड क्रीप इनटू द जॉन्डिस बाय बीइंग पीविश. ओके, अब वो क्या कहता है कि और जब वेकिंग आवर्स होते हैं, जब कुछ कर दिखाने का टाइम होता है, तब वो क्या करते हैं, वो सोते रहते हैं, वो सुस्त रहते हैं. ओके, और अगर उस टाइम उनसे कोई कुछ कह दे तो ऐसा लगता है दे बर्स्ट इनटू एंगर. ओके, ऐसा लगता है जैसे उन्हें जॉन्डिस हो गया. जॉन्डिस में एक्चुअली क्या होता है कि इंसान इल टेम्पर्ड हो जाता है, इरिटेट होता है. ओके, सो यहाँ पे भी एक चीज़ है कि जो एलिजाबेथ है वो ये बिलीव करती थी कि जॉन्डिस जो है वो कहाँ से कैसे आता है, तो वो बिकॉज ऑफ बैड टेम्पर, पीविशनेस एंड जेलेसी, ठीक है, वो होता है. सो यानी कि वो बताना चाह रही कि माइंड और बॉडी
के बीच में क्या है, बहुत ही क्लोज कनेक्शन है. ऑल राइट. एंड देन व्हाट हैपेंस, ही सेज आई टेल दी व्हाट एंटोनियो, he says, I tell thee what Antonio, I love thee and it is my love that speaks. ओके, सो ही सेज, मैं एंटोनियो तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ और ये मेरी कंसर्न ही है तुम्हारे लिए जिसकी वजह से मैं इतना बोल रहा हूँ. ओके, एंड देन ही सेज देयर आर अ सॉर्ट ऑफ men whose visages do cream and mantle like a standing pond and do a willful stillness entertain with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity and profound conceit. ओके, अब वो क्या कहता है कि इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग क्या करते हैं, अपने फेसेस को कवर अप कर लेते हैं. ओके, विद आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं ना कि रेपुटेशन पाने के लिए सीरियसनेस की, विजडम की. ठीक है, तो वो कह रहा है कि या प्रोफाउंड कंसीट, ग्रेविटी एंड विजडम. तो विजडम हो गया, ग्रेविटी सीरियसनेस हो गया, प्रोफाउंड कंसीट मतलब हो गया आपका डीप थॉट. ओके, तो वो कह रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये रेपुटेशन पाने के लिए क्या करते हैं, वो साइलेंट रहते हैं. ठीक है, जिस तरह से एक जो स्टैग्नेंट पूल होता है, एक ऐसा पूल या एक ऐसा लेक जहाँ पे जो पानी है वो मूव नहीं करता है, तो उसमें क्या होता है, स्लाइम और डर्ट आ जाती है, वो कवर अप कर लेता है उस पानी को. ठीक है, तो वैसे ही कुछ लोग क्या के जो फेसेस होते हैं ना वो एकदम कवर अप हो जाते हैं और कोई भी टाइप का कोई भी इंसान उन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं होता है. ठीक है, और वो सिर्फ इसीलिए साइलेंट रहते हैं जिसमें कि उनको विजडम, सीरियसनेस और डीप थॉट की क्या मिल सके, रेपुटेशन मिल सके. सो ही सेज दैट as who should say, I am Sir Oracle and when I open my lips let no dog bark. So what he says और उनको देख के ऐसा लगेगा as if they said that I am the fountain of wisdom and when I speak let others keep quiet. Okay, वो कहना चाहते हैं कि हम क्या, हम सर ओरेकल हैं. ओरेकल मीन्स we can say that वो वॉइस ऑफ गॉड है जो कि प्रीस्ट के मुंह से निकलती है, और प्रीस्ट मतलब कि जो लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं. ओके, तो वो उनके अंदर बहुत विजडम होती है, बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं वो ऐसे लोग. तो वो कह रहा है कि वो कहना चाहेंगे ऐसे जो लोग साइलेंट रहते हैं रेपुटेशन पाने के लिए खाली विजडम और इन सब की, तो कह रहे हैं वो कहेंगे कि हम सर ओरेकल हैं. ठीक है, और हम जब बोलें तो बाकी सब शांत हो जाएं. फिर देन ही सेज, ग्रेशियानो सेज, ओ माय एंटोनियो, आई डू नो ऑफ दीज दैट देयरफॉर ओनली अ repeated voice for saying nothing, and when I am very sure that if they should speak or would almost damn those ears which hearing them would call their brothers fools. Okay, अब वो क्या कहता है कि मैं भी ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ एंटोनियो जो लोग सिर्फ और सिर्फ तब तक वाइस लगते हैं जब तक कि वो लोग साइलेंट रहते हैं. एक बार जब वो बोलना शुरू करेंगे ना तो जो लोग उन्हें सुनेंगे वो अपने आप को कर्स करेंगे इस बात के लिए कि उन्होंने अपने ब्रदर को फूल समझा. ओके, सो मतलब जो लिसनर्स होंगे, ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस दैट अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बाइबल, whosoever calls their brothers fool will be in danger of hell. ओके, सो वो कह रहा है कि to damn their ears मतलब वही danger of hell. तो वो कह रहा है कि वो लोग अपने आप को डैम करेंगे कि भाई हमने अपने भाइयों को फूल क्यों समझा था, यानी कि वो साइलेंट पर्सन ऐसा कुछ बोल जाएंगे जो लोग कभी नहीं बोलते, फिर ऐसा बोलेंगे कि इवन जो सुनेंगे जो लोग वो अपने आप को कर्स करेंगे, डैम करेंगे. ऑल राइट, एंड देन व्हाट ही सेज दैट I will tell thee more of this another time, but fish not with this melancholy bait for this fool Gudkin. Okay, he says that this opinion come, good Lorenzo, fare ye well a while, I will end my exhortation after dinner. So what he says चलो अब मैं इसके बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि that do not look for cheap popularity with such a tool as your sad face. कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप उस चीप पॉपुलैरिटी को पाने के लिए सैड रहो या साइलेंट रहो. ओके, क्योंकि वो तो एक ऐसी पॉपुलैरिटी है जो आपको कभी भी कैसे भी मिल सकती है किसी भी चीज़ से, उसके लिए साइलेंट होने की ज़रूरत नहीं है या सैड होने की ज़रूरत नहीं है. ये उस और यहाँ पे जो चीप पॉपुलैरिटी है उसको वो किससे कंपेयर करता है, तो वो कंपेयर करता है एक फ़िश से. ठीक है, एक फ़िश जो कि गर्जियन होती है. ठीक है, तो वो कह रहा है कि गर्जियन एक्चुअली वी प्रोनाउंस, तो वो कह रहा है कि गर्जियन की तरह वो क्या है, बहुत ही ऑर्डिनरी होती है, कहीं पर भी मिल जाती है. तो वो कह रहा है कि उसी तरीके से जो पॉपुलैरिटी होती है वो भी बहुत ही ऑर्डिनरी होती है, कैसे भी मिल जाएगी आपको, उसके लिए आपको सैड या साइलेंट रहने की जरूरत नहीं है. एंड देन व्हाट ही सेज ओके नाउ लोरेंजो कम, एंड देन ही सेज गुड बाय टू एवरीवन नाउ, एंड अभी के लिए गुड बाय, और मैं अपनी जो एडवाइस है वो डिनर के बाद आपको पूरी बताऊंगा. ओके, एंड देन व्हाट हैपेंस दैट लोरेंजो सेज, well, we will leave you then till dinner time, but I must be one of these same dumb wise men, for Gratiano never lets me speak. Okay, अब वो क्या कहता है, लोरेंजो कहता है कि ठीक है अब हम आप लोगों को छोड़ देते हैं फ्री टिल डिनर टाइम, और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं भी उन्हीं साइलेंट वाइस मैन की तरह बन जाऊंगा बहुत जल्दी, क्योंकि ग्रेशियानो तो मुझे कभी बोलने देता ही नहीं है.
ओके, तो ग्रेशियानो इस बात पे क्या कहता है कि वेल कीप मी कंपनी फॉर 2 years मोर, दाउ शैल्ट नॉट नो द साउंड ऑफ डाइन ओन टंग। ओके, व्हाट ही सेज अरे तुम मुझे 2 साल और अपनी कंपनी में रख लो, फिर मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि तुम अपनी खुद की आवाज़ की जो साउंड है ना वो रिकॉग्नाइज करना भूल जाओगे। All right. So after this, what Antonio says, he says, farewell, I will grow a talker of this gear. Okay, he says, okay, goodbye to you and I will start speaking because of what you have said. ठीक है, तुमने जो कुछ भी कहा उसके बाद से अब मैं बोलना शुरू कर दूंगा। Then Graciano says, thanks, I will faith for silence is only commendable in a neat tongue dried and a maid not vendiable. Okay, now what he says, okay, thank you so much indeed, because साइलेंस सिर्फ वहीं पे प्रेज वर्दी होती है। देखो, एक तो जब कोई ऑक्स जो है वो प्यासा हो, ठीक है, तब वो प्रेज वर्दी है, या फिर एक ऐसी गर्ल जिसका मैरिज मार्केट में कोई भी मैरी करने का बिल्कुल भी चांस नहीं होता है, तभी वो शांत होती है और तभी वो प्रेज की जाती है। ऑल राइट, एंड देन व्हाट हैपेंस आफ्टर दीज वर्ड्स of Graciano, Lorenzo and Graciano, they leave the scene. Okay, they depart. And then here in the scene, only Antonio and Bassanio are being left. Antonio says he's asking from Bassanio, is that anything now? He's asking, अब कुछ और रह गया है, ठीक है, बताने को। तो Bassanio says, Graciano speaks an infinite deal of nothing, more than any man in all Venice. He says, Graciano indulges, Graciano इतनी idle talk करता है, इतना बकवास करता है, जितना कि पूरे वेनिस में कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो इतना बोलता हो फालतू का। एंड देन ही सेज हिज स्पीच, उसकी जो स्पीच होती है ना वो कैसी होती है, जैसे कि 2 बुशल्स अगर रखे हो ना कोई वर्थलेस स्टफ के, तो उसमें से सिर्फ 2 grains ऑफ व्हीट जो होगा ना वो उसकी क्या होगा, वो काम की बात होगी। अगर उससे भी उस 2 grains को भी आप ढूंढने के लिए बैठोगे ना पूरे दिन, तो भी क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि वो क्या थी, वो भी सिर्फ बकवास थी एंड वो भी टाइम वेस्ट था। ठीक है, जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। And then what happens, Antonio says, well, tell me now, what lady is the same to whom you swear a secret pilgrimage that you today promised to tell me of? Okay, now what happens, here we see that Antonio is asking from Graciano that well, आज तो मुझे एक उस लेडी के बारे में बताने वाले थे जिसके साथ तुम सीक्रेटली क्या करने वाले थे, पिलग्रिमेज पे जाने वाले थे। ओके, सो कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम उसके बारे में मुझे आज बताओगे, तो मुझे बताओ। सो यहाँ पे पिलग्रिमेज की बात इसलिए कहा गया है क्योंकि पोर्शिया के कैरेक्टर को एक गॉडेस से कंपेयर किया गया है। ठीक है, एक ऐसी लेडी जिसको अटेन करना बहुत ही मुश्किल है एंड वो वर्शिप की जाती है बहुत लोगों से। ठीक है, एंड नाउ व्हाट हैपेंस, now here Bassanio, he says about his character, we will come to know about his character through his speech. He says, "'Tis not unknown to you, Antonio, how much I have disabled mine estate by something showing a more swelling port than my faint means would grant continence." Okay, now he says that तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है एंटोनियो कि किस तरह से मैं अपने एक लग्जूरियस, एक लैविश लाइफ जीने के लिए मैं अपनी मॉडरेट इनकम से कई गुना ज़्यादा स्पेंड करता हूँ। ओके, और कह रहा है कि लेकिन मैं इस बात के लिए कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे जो चीफ वरी है वो बस इतना है कि किस तरह से मैं उन सारे डेब्ट्स को पे, जिसकी वजह से मैं इतना कर्जे में चला गया हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे उसको पे करके और पूरे सम्मान के साथ, मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनको क्लियर करके बाहर आऊँ। ओके, सो कह रहा है बस मेरा चिंता का विषय सिर्फ इतना सा ही है। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक्चुअली व्हाट हैपेंस दैट हियर इट इज गिवन, he says, nor do I now make moan to be abridged from such a noble rate, but my chief care is to come fairly off from the great depths wherein my time something too prodigal had left me gazed. Okay, so he says that को मेरा सिर्फ इस टाइम चीफ कंसर्न इतना ही है कि किस तरह से मैं अपने सारे जो डेब्ट्स है, सारा कर्जा जो है वो मैं क्लियर कर सकूँ और मैं बाहर आ सकूँ पूरे रेस्पेक्ट के साथ उससे। ठीक है, जो कि मैंने अपनी यूथ की वजह से मैंने क्या किया था, यूथ के टाइम पे मतलब वो सब स्पेंड किया था और उसकी वजह से क्या हुआ, मैं कर्जे में चला गया। एंड देन ही सेज दैट पॉडिगल से अपने आप को कंपेयर करता है पॉडिगल सन से। एक्चुअली पॉडिगल सन्स मीन्स व्हाट, उसने क्या किया था, उसने अपना सारा शेयर ले लिया था अपने फैमिली प्रॉपर्टी का एंड देन उसने घर छोड़ दिया था। उसके बाद वो एक लग्जूरियस लाइफ उसने जी थी, बट लेटर व्हाट हैपेंड दैट वो एकदम से पेनीलेस हो गया। ठीक है, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रह गया और वापस से वो अपने होम आ गया, अपने फादर के पास। ठीक है, तो उसी तरीके से बेसानियो भी जो है वो क्या करता है, वो रिटर्न कर जाता है एंटोनियो के पास। ऑल राइट, एंड देन ही टेल्स टू एंटोनियो that
To you, Antonio, I owe the most in money and in love, and from your love, I have the warranty to unburden all my plots and purposes. He says that and how to get clear of all the debts I owe. Okay, so now what he says that Antonio, तुम्हारे को मैं बहुत तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम पैसों के टर्म्स हो या लव का टर्म्स हो, मुझे तुम्हें बहुत कुछ देना भी है. एंड देन ही सेज कि तुम्हारा ये जो अफेक्शन है ना, उसी की वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिलती है कि मैं अपने सारे प्लान्स वगैरह को तुमसे शेयर कर सकूं, और उसी से मुझे ये हिम्मत मिलती है कि मैं अपने सारे डेब्ट्स को भी पे ऑफ कर दूंगा. ऑल राइट, सो व्हाट हैपेंस नाउ, he says, Antonio says after hearing this that, I pray you, good Bassanio, let me know it, and if it stand as you yourself still do within the eye of honor, be assured my purse, my person, and my extremist means lie all unlocked to your occasions. Okay, now what he says, Bassanio, you tell me everything. Okay, तो मुझे सब कुछ बताओ, और अगर तुम्हारा जो प्लान है वो उतना ही परफेक्टली ऑनरेबल है जैसे कि तुम हो, ठीक है, तो कह रहा है कि फिर मैं तुम इस बात के लिए श्योर रहो कि मेरा मनी, मेरा पैसा, मेरा बॉडी, मेरे सारे रिसोर्सेज जो है ना, मैं सब कुछ लगा दूंगा तुम्हारे यूज के लिए. ऑलराइट, तुम्हारी हेल्प के लिए. एंड देन व्हाट हैपेंस, Bassanio says, he gives the example of his school days. He says, in my school days when I had lost one shaft, I shot his fellow of the self same flight, the self same way, with more advised watch. Okay, and then what he says that जब मेरा मैं स्कूल डेज में था, तो उस टाइम पे जब मेरा एक एरो खो जाता था ना, तो मैं दूसरा एरो भी जो होता था सेम डायरेक्शन में शूट करता था, और फिर क्या होता था कि मैं उसको बहुत ध्यान से देखता था उस सेकंड वाले को, और वहां जाकर के फिर मैं दोनों रिकवर कर लेता था. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ. तो कह रहा है कि बाय रिस्किंग द सेकंड एरो मैं दोनों रिकवर कर लेता था, फर्स्ट एंड सेकंड. कह रहा है कि इसी तरीके से मैं आज ये जो अपना चाइल्डहुड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई अर्ज दिस चाइल्डहुड प्रूफ बिकॉज व्हाट फॉलो इज प्योर इनोसेंस. ओके, कह रहा है क्योंकि जब अब जो मैं तुमसे प्रपोज करने वाला हूँ बहुत ही हार्मलेस है, बहुत ही प्योर इनोसेंस है. ऑल राइट, तो दैट मीन्स कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसने एंटोनियो से जितना भी पैसा लिया था वो सब स्पेंड कर दिया, ठीक है, इन द नेम ऑफ प्योर इनोसेंस एंड फॉर अ लैविश लाइफ स्टाइल. और अब वो क्या करता है, वो उससे एक और चीज़ मांगता है, ठीक है, थोड़ा और लोन मांगता है. तो वो क्या कह रहा है कि जैसे कि कह रहा है, आई ओ यू मच एंड लाइक अ विलफुल यूथ दैट विच आई ओ इज लॉस्ट, बट इफ यू प्लीज टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ वे विच यू डिड शूट द फर्स्ट, आई डू नॉट डाउट एज आई विल वॉच द एम और टू फाइंड बोथ और ब्रिंग यू लेटर हजार्ड बैक अगेन एंड थैंकफुली रेस्ट डेटर फॉर द फर्स्ट. ओके, अब वो क्या कह रहा है, मैंने आपसे देखो जो कुछ भी लिया था मैंने आपसे, ठीक है, जो मुझे आपको देना था, लेकिन एक सेल्फ विल्ड यंग मैन की तरह मैंने जो कुछ भी लिया था वो सब स्पेंड कर दिया, सब मेरा खो गया है, ठीक है, सब खत्म हो गया है. तो कहता है कि लेकिन अगर आप रिस्क लो सेकंड लोन देने का, ठीक है, तो क्या होगा कि मैं जिस तरह से आपने मुझे फर्स्ट लोन दिया था, तो मैं इस बात की श्योरिटी आपको देता हूँ कि मैं इस वाले को बहुत ही ध्यान से देखूंगा और मैं आपको दोनों रीपे कर दूंगा लोन्स. ठीक है, कहता है कि किसी भी कीमत पे अगर मैं आपका फर्स्ट लोन नहीं भी दे पाता, तो मैं सेकंड वाला तो डेफिनेटली, मतलब दोनों नहीं दे पाता, तो सेकंड वाला जो अभी मैं लूंगा वो डेफिनेटली पे बैक कर दूंगा, पे ऑफ कर दूंगा, और मैं फर्स्ट वाले के लिए आपका ग्रेटफुल डेटर रहूंगा. ओके, then what happens, Antonio, after hearing all these things, he says, you know me well and herein spend but time to wind about my love with circumstance, and out of doubt you do not do me now more wrong in making question to my uttermost than if you had made waste of all I have, then do but say to me what I should do, then in your knowledge may by me be done, and I am pressed unto it, therefore speak. Okay, so now what happens that Antonio says, ये जो तुम मेरे लव को रेफर कर रहे हो, उससे सिर्फ और सिर्फ तुम क्या कर रहे हो कि मेरा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो. ओके, और वो कहता है कि श्योरली यू रॉन्ग मी मोर बाय डाउटिंग अबाउट माई रेडीनेस टू हेल्प यू विद अ बिगर अमाउंट ऑफ मनी देन यू वुड एक्चुअली स्पेंड. कह रहा है कि तुम जो इस टाइम क्या कर रहे हो ना, तुम मुझे डाउट कर रहे हो मेरे ऊपर कि मैं तुम्हें पता नहीं जितना मैंने पहले तुम्हें अमाउंट दिया था उससे ज़्यादा अमाउंट अगर तुम मांग रहे हो तो मैं तुम्हें दूंगा या नहीं दूंगा. अगर तुम ऐसा डाउट कर रहे हो, दैट मीन्स कि इसकी वजह से तुमने आज मुझे इतना हर्ट किया, जितना एक इंसान को उसकी सारी वेल्थ जब खो जाती है तब उसको हर्ट होता है, वैसा हर्ट आज तुमने मुझे किया है. ओके, एंड देन ही सेज दैट यू हैव ओनली टू टेल मी दैट व्हाट यू वांट मी टू डू. ठीक है, तुम बस मुझे ये बताओ ना कि तुम मेरे से क्या चाहते हो, मैं क्या करूं, और अगर तुम्हें पता है कि मैं कर सकता हूं तुम्हारी हेल्प, देन आई विल बी ओबिलाइज्ड टू डू इट, सो प्लीज स्पीक. ओके, देन व्हाट हैपेंस, Bassanio, he mentions and he says that in Belmont is a lady richly left. She is fair and fairer than the word of wondrous virtues. Sometimes from her eyes I did receive fair speechless messages. Her name is Portia, nothing undervalued to Cato's daughter, Brutus' wife. Okay,
नाउ व्हाट हैपेंस, ही सेज बेलमोंट में एक ऐसी लेडी है जिसने बहुत ज़्यादा वेल्थ जो है वो इनहेरिट कर रखी है, एंड शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड शी हैज़ ग्रेट वर्च्यूज़। ओके, और कह रहा है कि उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसके जो वर्च्यूज़ है, वो उसको और भी ज़्यादा उसकी ब्यूटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। एंड ही सेइंग दैट समटाइम्स आई हैव रिसीव फ्रॉम हर आईज साइलेंट लवली मैसेजेस फॉर मी, एंड हर नेम इज पोर्शिया एंड शी इज़ नो लेस देन केटोज डॉटर एंड ब्रूटस वाइफ पोर्शिया। ओके, दैट मीन्स कि वो कहना चाह रहा है कि जो ब्रूटस की वाइफ थी पोर्शिया, केटो की डॉटर थी, ठीक है, जो कि ब्रूटस कौन था, तो वो ही वॉज द कॉन्स्पिरेटर हु लेड द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जूलियस सीजर। ओके, तो कह रहा है कि वो जो पोर्शिया थी उससे किसी भी चीज़ में ये कम नहीं है पोर्शिया बेलमोंट में। एंड ही सेज पूरा जो वर्ल्ड है ना वो उसकी वर्ड से अवेयर है। क्यों? क्योंकि जितने भी फेमस सूटर्स हैं ना वर्ल्ड के चारों कॉर्नर्स में, वो सब सेल करके आ रहे हैं उसको मैरी करने के लिए, उसको विन करने के लिए। ऑलराइट, एंड देन ही सेज दैट renowned suitors and her sunny locks hang on her temples like a golden fleece, which makes her seat of Belmont College stand, and many Jasons come in quest of her. Okay, now what he's saying, कि जब पोर्शिया अपने बेलमोंट की सीट मतलब कह रहा है कि जब पोर्शिया जो है वो एडोन करती है अपने प्रिटी हेयर्स को, ठीक है, अपने फोरहेड पे जब हवा चलती है और उसके फोरहेड पे उसके जो प्रिटी हेयर्स हैं वो जब उसके आते हैं फोरहेड पे, तो क्या होता है कि वो एकदम गोल्डन फ्लीस की तरह लगती है। उसको कंपेयर कर रहा है पोर्शिया को गोल्डन फ्लीस के साथ। एक्चुअली गोल्डन फ्लीस क्या था कि बहुत पहले क्या था कि एंशिएंट मतलब जो ब्लैक सी थी उसके पार क्या था, वहाँ पे एक गोल्डन वूल रखा हुआ था जिसको ड्रैगन्स वगैरह क्या करते थे, गार्ड करते थे। ऑलराइट, तो क्या हुआ था कि जेसन अपनी बिलव्ड मीडिया की हेल्प से वो वहाँ पे गया था और उसको लाने में सक्सेसफुल हुआ था, अदरवाइज वो लाना इम्पॉसिबल सा था, बहुत ही मुश्किल था। ओके, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो वैसे ही वो कह रहा है कि पोर्शिया भी एक गोल्डन फ्लीस की तरह है जो जिसको अटेन करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही विन करना मुश्किल था। तो कह रहा है और जब वो अपने होम बेलमोंट में बैठती है ना अपने सीट पे, तो वो कैसा लगता है, एंशिएंट किंगडम ऑफ कॉल्चेस की तरह लगता है। ऑलराइट, कॉल्चेस वाज अ किंगडम। ओके, तो कह रहा है कि और बहुत सारे सूटर्स जो है ना, मेनी सूटर्स गो देयर टू विनर, बहुत सारे सूटर्स हैं जो वहाँ गए उसको विन करने के लिए। ओ माय डियर एंटोनियो, अगर मेरे पास भी वो पैसे होते जिसमें कि मैं बेलमोंट जा सकता हूँ, उन्हें कंपीट कर सकता हूँ उन सारे सूटर्स को, तो मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझसे ये कह रहे हैं दैट आई शुड श्योरली बी द विनर। Okay, now what happens after hearing all these words from Bassanio? Antonio says that thou knowest that all my fortunes are at sea, neither have I money nor commodity to raise a present sum. Therefore go forth, try what my credit can do in Venice, and that shall be racked even to the uttermost to furnish thee to Belmont to fair Portia. Okay, now what he's saying Bassanio, मेरा सारा मनी जो है वो शिप्स में इन्वेस्ट है जो कि सी में है ऑलरेडी, ओके, अब्रॉड में है। कह रहा है अभी एट प्रेजेंट ना ही मेरे पास कैश है ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसपे मैं मनी को रेज कर सकूं, लेकिन हाँ मेरे क्रेडिट पे जाओ, देखो वेनिस में तुम्हें क्या हेल्प मिल सकती है। कहता है कि और मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि तुम्हें इतना मिल जाएगा कि डेफिनेटली तुम बेलमोंट जा सको और ब्यूटिफुल पोर्शिया को विन कर सको। एंड देन ही सेज कि गो प्रेजेंटली इंक्वायर एंड सो विल आई वेयर मनी इज, एंड आई नो क्वेश्चन मेक to have it of my trust for and or for my sake. What he says that तुम एक काम करो, तुम जा करके इंक्वायर करो, और सेम काम मैं भी करता हूँ चल के। एंड कहता है कि देखता है कहाँ पे पैसे मिल सकते हैं हम लोगों को, कौन मनी लेंडर है। एंड देन ही सेज दैट देखते हैं, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि डेफिनेटली पैसे मिल ही जाएंगे, चाहे मेरे बिजनेस क्रेडिट पे मुझे मिले, चाहे मेरी पर्सनल श्योरिटी के अगेंस्ट मिले। ओके, बट पैसे मिल जाएंगे जिसमें कि तुम बेलमोंट जा सको और फेयर पोर्शिया को विन कर सको। ऑलराइट, so after saying all these words, what happens that both Antonio and Bassanio, they leave the scene. Okay, they both depart. So this is the end of Act 1, Scene 1. Please like and share your views in the comment section. If you have any doubt, please mention in the comment section. I will definitely reply. Thank you.